Vector in 3D. Vector 3D say there'll be 2 to 3 question, maybe 4 also sometimes in entrance. And the best part is that the level of the question is not very high. So these questions are doable. मतलब ये entrance में भी हो सकते हैं. एंड जो पहले प्लेन हुआ करता था 2 साल कोविड से पहले वो हट चुका है. दैट यूज्ड टू बी टफेस्ट पार्ट ऑफ द 3D. वो इट्स नॉट देयर. दे यूज्ड टू बी ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट ऑल्सो, एसटीपी. वो भी अब सिलेबस में नहीं रहा. सो दैट वे यू हैव गुड चांसेस टू स्कोर गुड मार्क्स इन वेक्टर 3D. तो एज इट इज बोर्ड में तो आ ही रहा है ये. अच्छा खासा वेटेज है इसका. So 2, 3, 4 questions could be there, and you can always answer these. This is a line segment. They are interrelated as such, vector and 3D. पहले हम vector करेंगे. And if you put an arrow, then this is called directed line segment. So a vector is directed line segment. लिख लो. A vector is directed line segment. A directed line segment is called vector. This point is called tail. This point is called tip or head. B is tip of the head of the vector, and A is the tail of the vector. Length of the vector would basically tell you about the magnitude of the vector, and it is written like this also. AB vector you can write like this, bar लगा दो या arrow लगा दो, या simply you can write a vector also. You can name it like this. So a directed line segment is called vector, and this is magnitude only. So it's a numerical value. For example, if a person moves, say, 5 kilometer east, सो दिस इज अ वेक्टर एट द मोमेंट बिकॉज मैंने डायरेक्शन में दिया हुआ है. बट अगर तुम सिर्फ बोलोगे 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, तो मतलब इट इज अ मैग्नीट्यूड. दिस इज सो विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. नल और जीरो वेक्टर. वेक्टर विच हैज zero magnitude and any arbitrary direction. Vector which has zero magnitude and any arbitrary direction is called a null vector. Null और जीरो वेक्टर. नल या जीरो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? लाइक दिस. जीरो के ऊपर एरो लगा दो. सो इट हैज जीरो मैग्नीट्यूड एंड इट हैज एनी आर्बिट्ररी डायरेक्शन. कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है इसकी. दिस इज नो फिक्स डायरेक्शन एज सच. Collinear vectors. Vectors which are parallel to a given line are said to be collinear vectors. ये सारे vectors collinear हैं. Vectors which are parallel to a line, to a common line. Vectors which are parallel to a common line or to any line or to the same line are collinear vectors. ये सारे के सारे वेक्टर्स कोलिनियर हैं.
Next, like vectors. Vectors which have the same direction are like vectors. Vectors having same direction are called like vectors, जिनकी डायरेक्शन सेम हो. So can we say like vectors are collinear? Hmm? Can we say collinear vectors are like? ठीक है? It's not correct. So all like vectors are collinear. All like vectors are collinear, but all collinear are not like A and C are not like vectors. They're opposite. लिख लेना ये नोट करके साइड में. All like vectors are collinear, but all collinear vectors may not be like. All like vectors are collinear, but all collinear vectors may not be like vectors. Co-initial vectors. As the name suggests, collinear vectors are those which have same starting point, which initiate from the same point. Vectors which begin from the same point or start from the same point, or vectors which have their tail at one common point. Vectors which have their tails at one common point are co-initial. जो भी वेक्टर सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं और जिनकी टेल एक कॉमन पॉइंट पे है co-initial. So all these are co-initial. Next is coterminous. Coterminous vectors. तो coterminous को मतलब होता है सेम, टर्मिनल एंड हो रहे हैं. Those vectors which terminate, those vector which terminate at the same point, or vectors which terminate at the same point, or vectors whose tip or head at a common point, which vectors which have their head or tip at a common point are coterminous. तो कोटर्मिनस में सभी वेक्टर का टिप एक ही पॉइंट पे होगा. ऑल दीज आर कोटर्मिनस. सभी का टिप एक कॉमन पॉइंट पे है. नेक्स्ट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट. Position vector. Now suppose we have a three-dimensional system, coordinate system, and there's some point A over here. तो अगर हम A को ज्वाइन करें origin से, so this vector OA is said to be position vector of point A, or short में you can call it PV of point A, because it basically locates the position of the point. किसी भी पॉइंट की लोकेशन ये बताएगा वेक्टर वो पॉइंट कहाँ सिचुएटेड है on the coordinate system. If there's another point B, then OB vector would be
PV ऑफ पॉइंट बी। जो पॉइंट है उसको अगर हम ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो वेक्टर बन जाएगा। सो वेक्टर ज्वाइनिंग ओरिजिन विद द पॉइंट इज पोजीशन वेक्टर। ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन कर दो। नेगेटिव ऑफ वेक्टर, इफ यू हैव सम वेक्टर ए बी, ए इसका टेल है और बी इसका टिप है। सो नेगेटिव ऑफ वेक्टर यू कैन ऑप्टेन बाय जस्ट इंटरचेंजिंग टिप एंड टेल। मतलब डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे तो उसका नेगेटिव वेक्टर आ जाएगा। सो ए बी वेक्टर विल बी माइनस बी ए वेक्टर। अगर सपोज ये ए वेक्टर है तो ये कितना आ जाएगा, माइनस से हो जाएगा। सो नेगेटिव वेक्टर वुड बी सिंपली वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। फिर तुम्हारा दोस्त यूनिट वेक्टर। किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा यूनिट लेंथ का बट सेम डायरेक्शन। वेक्टर having same direction and unit length is called unit vector. Vector of unit length and having same direction as the given vector is unit vector. Vector which is unit vector has its mod equal to 1, and any unit vector can be obtained by dividing the vector by its mod. किसी वेक्टर को इसके मॉड से डिवाइड करोगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। You know three unit vectors along x-axis, y-axis and z-axis. I cap, j cap, k cap, है ना। अगर ये x एक्सिस है, ये y है और ये z है। इसे राइट हैंड सिस्टम, ठीक है। फिंगर्स टू द राइट हैंड को अगर तुम x से y घुमाओगे तो z विल बी गिवन बाय थंब। तुम इसको ऐसे ही बना सकते हो, x, y and z. If I turn my fingers of right hand from x to y, z would be outside. So unit vector along x axis will be I cap, along y cap, j cap, and this is k cap. और अगर मैं कोई वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है तो मैं क्या करना है, उसके यूनिट का वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सपोज यू वांट टू फाइंड आउट ए वेक्टर ऑफ लेंथ से 5 यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस, तो 5 i cap, 5 को i cap से मल्टीप्लाई कर दिया। वेक्टर ऑफ लेंथ 5 यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस, 5 i cap। हम्म, सही है। सपोज यू वांट ए वेक्टर ऑफ लेंथ 7 यूनिट्स अलोंग नेगेटिव z एक्सिस, तो वो क्या होगा, -7 k cap। तो मैग्नीट्यूड को जब तुम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे you'll get द वेक्टर। और अगर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, अगर वेक्टर को ये डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड you'll get डायरेक्ट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। तो ओबी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ गया, -k cap हो गया। ठीक है मेरा, नो डिनर। नहीं सर, बाद में खाऊंगी।
आप तुम्हारे प्री बोर्ड आ रहे हैं? Sir, they start on like I think 22nd December. अच्छा ठीक है, तो फिर तो तुम सेफ हो, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर कभी भी हो सकता है। लाइट वाइट जाएगी ना तुम्हारी वापस। So क्या पता। हाँ। नाउ, लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल अलजेब्रा। नॉर्मल अलजेब्रा में क्या होता है, 2 + 2 हमेशा 4 होता है ना, एक और एक 11 होता है। दैट इज इन हिंदी, एक और एक 11। सो नॉर्मल मैथ्स में 2 + 2 इज ऑलवेज 4, वेक्टर में क्या होगा, 2 + 2 कैन बी 0 ऑल्सो, 2 + 2 कैन बी रूट टू ऑल्सो, 2 + 2 कैन बी 4 ऑल्सो। सो वेक्टर अलजेब्रा के लॉज थोड़े डिफरेंट हैं। सपोज, तो अब हम पहले बात करें एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। So there are two laws to add vectors. One is triangle law, and the second one is parallelogram law. Triangle law में हम क्या करते हैं? If you want to add two vectors using triangle law, पहले वेक्टर बना लेते हैं. So this is vector A and this is vector B. And we want to find out the resultant using triangle law. So in triangle law, what we do is we draw the first vector, then place the tail of the second vector on the tip of the first. Draw the first vector and then place tail of the second vector on the tip of the first. And then resultant of the two vectors is obtained by joining the tail of the first to the tip of the second. So this is the resultant C, which is A plus B. So this is triangle law. In triangle law, you place tip or tail of the second vector on the tip of the first. And then resultant is obtained by joining tip of the second, tail of the first to the tip of the second. So over here, C is the resultant of two vectors A and B. दूसरी बात, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कौन सा लिया जाएगा? सपोज एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, सो विच एंगल यूल टेक एज एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ये वाला लोगे या ये वाला? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज ऑलवेज द वन वेयर दे डाइवर्ज और दे कन्वर्ज। तो यहाँ तो ये डाइवर्ज हो रहे हैं और यहाँ ये कन्वर्ज हो रहे हैं, मतलब ये वाला एंगल लिया जाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ एक्यूट और ऑब्ट्यूस, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जिस पॉइंट पे दो वेक्टर डाइवर्ज कर रहे हैं और कन्वर्ज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे इफ आई आस्क यू व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर एंड वेक्टर बी, तो दिस इज ए का डायरेक्शन, दिस इज बी का डायरेक्शन, दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। So angle between the two vectors would be always the one where they converge or diverge. जैसे कि ये है, मान लो एक वेक्टर ये है, दूसरा ये है, तो कौन सा एंगल लोगे? इसको आगे शिफ्ट कर दो, ऊपर वाला हो गया। इरेस्पेक्टिव ऑफ एक्यूट और ऑब्ट्यूस, हमें ये देखना है कहाँ वो कन्वर्ज हो रहे हैं, कहाँ डाइवर्ज हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे इस एरो को यहाँ शिफ्ट करोगे तो यहाँ कन्वर्ज हो रहे थे, तब भी यही आता सेम। तो दिस इज ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ में तुम एक चीज नोटिस करोगे कि अगर दो वेक्टर सेम सेंस ऑफ रोटेशन में हैं तो रिजल्टेंट ऑपोजिट सेंस में आएगा हमेशा। जैसे कि ये मान लो वेक्टर एक्स है, ये वेक्टर वाई है और ये वेक्टर जेड है। बताओ रिलेशन क्या होगा इन तीनों में? क्या बात कर रहे हो?
ऐसे मत बोलो। दो वेक्टर कौन से सेम सेंस ऑफ रोटेशन में, ये दोनों। तो क्या हुआ, बस सही थे तुम, कॉन्फिडेंट नहीं थे बस। तो दो वेक्टर जो सेम सेंस ऑफ रोटेशन में होंगे, उनको लेना है, वो थर्ड उसके ऑपोजिट होना चाहिए। जैसे कि ए पॉइंट इज बिन गिवन, बी पॉइंट इज बिन गिवन, इसका पोजीशन वेक्टर है मान लो ए, इसका पोजीशन वेक्टर है बी, एंड आई आस्क यू टेल मी व्हाट इज ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर क्या आएगा ट्रायंगल लॉ से, जरा देखो। रिलेट ए बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर। सो विच टू वेक्टर ऑन द सेम सेंस ऑफ रोटेशन, एक के बाद एक ये, और ये ऑपोजिट सेंस में है। तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर इज ओ बी माइनस ओ ए, और यू कैन से ए बी वेक्टर इज ऑलवेज पी वी, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी, माइनस पी वी ऑफ ए। ये याद कर लेना, बहुत काम आएगा ये। जब भी किसी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकालना है, पहले बी का लिखोगे, उसके बाद ए का, माइनस साइन। पोजीशन वेक्टर का मतलब है यू ज्वाइन द पॉइंट विद द origin, origin to that point is the position vector. So triangle law is this. अगर मान लो somebody else वो पहले ले लेता है इस वाले वेक्टर को, पहले बी, वो हमने ए के टिप पे बी के टेल को फिक्स किया है ना, प्लेस किया, फिर रिजल्टेंट निकाला। सपोज समवन सेज कि भाई मैंने बी ले लिया पहले, और बी के टिप पे ए का टेल रखा, एंड देन बाय ज्वाइनिंग टेल ऑफ द बी and joining tip of A, you get the resultant. So will it be the same as this? तो वो भी सेम आएगा, देख लो। अगर मैं A को यहाँ प्लेस कर देता हूँ, तो रिजल्टेंट वुड बी दिस, विच इज सेम एज C। से पैरेललोग्राम। कहने का मतलब A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज सेम एज B वेक्टर प्लस A वेक्टर। तो वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। Addition of vectors is commutative. By changing the places, you will get the same result. तो नॉर्मल अलजेब्रा में ही होता है 2 + 3 = 3 + 2, है ना। Addition of vectors is also commutative. Addition of numbers 2 + 5 = 5 + 2. लेकिन we can't say the same thing for difference. 2 - 5 will not be 5 - 2, है ना। ये जो ट्रायंगल लॉ है, ये दो की जगह तीन वेक्टर्स के लिए भी ट्रू करेगा, चार वेक्टर के लिए भी ट्रू करेगा, पांच के लिए भी ट्रू होल्ड करेगा। इट विल होल्ड ट्रू फॉर एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स। इसको हम पॉलीगन लॉ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ पॉली, लॉ ऑफ पॉली क्या होगा फिर, लॉ ऑफ ट्रायंगल का लॉ ऑफ पॉलीगन हो जाएगा ऑफ वेक्टर एडिशन। सपोज एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर बी ये है, और थर्ड वेक्टर सी ऐसा है। अब तीनों को कैसे ऐड करोगे, पहले मैंने ए को ड्रॉ किया, देन ऑन द टिप ऑफ ए आई प्लेस द टेल ऑफ बी, वो आ गया। फिर द टिप ऑफ बी आई प्लेस द टेल ऑफ सी, एंड देन ज्वाइनिंग द tail of the B A to the tip of the last. That is the resultant, and this vector would be A plus B plus, ये पॉलीगन लॉ हो गया। दो की जगह तीन ले लिए, चार भी ले सकते हो। कहाँ है सेम, ए की अलग है, बी की अलग है, सी की अलग है। हम्म, ऐसा मत करो। किसकी सेम है, नहीं कहाँ है, ये अलग डायरेक्शन, इसकी अलग है, ये अलग, तीनों की डायरेक्शन सेम कहाँ है।
मतलब क्या? बताओ ना क्या सेम है। वो तो जब एल्जेब्रिकली कर दो तब करना पड़ता है ना, रिजॉल्व करके। वो तो रिजॉल्व कर तब आएगा, वो दैट इज एनालिटिकल मेथड, ये है वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड से तुम्हें मैग्नीट्यूड नहीं मिलेगा। जैसे हमने अभी जो किया था सी इक्वल टू ए प्लस बी, वो तो वेक्टर मेथड था। लेकिन उसी में मुझे अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैं रिजॉल्व करके फिर करूंगा सॉल्व। इसमें अगर हम सी में अगर ए ऐड कर दें पहले, है ना, ये होगा सी में ए ऐड कर दिया, या पहले बी में सी ऐड करे, सी में ए को ऐड किया, और देन आई ज्वाइन, ये आ गया। तो ये भी पैरेललोग्राम बन गया। कहने का मतलब ये हो गया कि पहले हमने ए में बी को ऐड किया और फिर सी को ऐड किया। ओवर हियर आई हैव एडेड बी विद सी, देन आई हैव एडेड ए। सो वेक्टर एडिशन इज आल्सो एसोसिएटिव। जो कम्यूटेटिव इज फॉर टू वेक्टर्स, associative is for more than two vectors. So vector addition is also associative. वैसे तुम ए में बी ऐड करो फिर सी ऐड करो, या फिर बी में सी और फिर ए ऐड करो, आंसर वही है। ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम है, पैरेललोग्राम बन गया। So this is A, this is B, and ये इसका रिजल्टेंट था C इक्वल टू ए प्लस बी। इसको प्रोड्यूस करो, ड्रॉ बाय परपेंडिकुलर। दिस लेंथ इज बेसिकली बी, है ना, वेक्टर बी इसका लेंथ बी हो जाएगा, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। सो इफ आई रिजॉल्व बी, if I resolve B, so this the base would be B cos theta from here to here, because the hypotenuse is B, and the perpendicular would be B sin theta. So I can find magnitude of the resultant, and this is A magnitude. So if you apply Pythagoras in the bigger right triangle, so it would be mod C square is equal to mod A plus mod B cos theta whole square plus mod of B sin theta whole square. I'm using Pythagoras in the bigger right triangle. इसको ओपन करो। So if you open this, it'll be C square is equal to A square 2AB cos theta plus B square cos square theta plus B square sin square theta. That is C square equal to A square. This will become B square plus 2AB cos theta. So you know the mod of C. You've done this in physics 11th class. Same thing is in 12th wave optics also, when you find this theta. Resultant intensity of two waves, principle of superposition. So this is the magnitude of the resultant. दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कैसे निकलेगी? डायरेक्शन tan फाई यूज कर लो। tan फाई सेम ट्रायंगल में it would be perpendicular by base. So that's how you can find direction as well as magnitude of resultant of two. So this was using triangle law. Then the second law for vector addition is parallelogram law.
सो इफ यू वांट टू ऐड टू वेक्टर्स यूजिंग पैरेललोग्राम, फिर क्या करते हैं? Method is totally different. Result would be the same. Draw them as co-initial vectors. Draw the two vectors as co-initial vectors. मतलब दोनों के tail same point पे. And then complete the parallelogram. Complete the parallelogram. And then the diagonal between them will give you the resultant. This time this is theta and this is phi. So you draw two vectors as co-initial. Then the diagonal between the two will give you the resultant of two vectors. So this is parallelogram law. But you can notice that triangle law is contained in the parallelogram law. कैसे? पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल होती हैं, तो ये बी वेक्टर हो गया। तो ये देखा जाए तो ये ए बी एंड रिजल्टेंट ट्रायंगल लॉ भी आ गया। ट्रायंगल लॉ इज कंटेन्ड इन पैरेललोग्राम लॉ। और वही करोगे परपेंडिकुलर डाल के सेम आंसर आएगा इससे भी। सो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करना है, रिजॉल्व नहीं करना है। लिखो, टू फोर्सेस, टू फोर्सेस 12 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। न्यूटन से अगर डर लग रहा है तो छोड़ो, वेक्टर लिख लो, टू वेक्टर्स 12 एंड 5। 11th क्लास फिजिक्स याद आ जाएगा अदरवाइज तुम्हें। टू वेक्टर्स 12 and 5 are acting at an angle, are acting at an angle. First part 0 degree, second part 60 degree, third part 90, fourth 120, and the last 180. Find the magnitude of resultant and its direction. Find magnitude of resultant and its direction. तो ए को तुम 12 लेना, बी को 5 और सॉल्व कर लो। 180 माइनस 60 माइनस हाफ। हाँ, वैल्यूज डाल देना। और डायरेक्शन में निकालना है हर केस में।
क्या हुआ? पहले का आंसर बहुत गंदा आ रहा है, 17 आ रहा है। 289 का रूट हो गया ना, cos 01 होता था पहले, अभी भी होता ही है। तो 289 का रूट 17 हो गया, बात खत्म। 50 आएगा बिकॉज बोथ आर एक्टिंग पैरेलल, है ना। पाई नहीं निकाला तुमने, पाई इस वाले से आ जाएगा। ठीक है, ए को 12 ले लो। So we are finding phi with the angle A, which is 12 units. So in the first case, the angle between the two vectors is 0. So the resultant would be maximum, which is 17 units. A is 12. Hmm. Because theta is 0, no? हाँ, उसको छोड़ दो as it is. First case में theta is 0. So the resultant would be maximum because cos 0 की maximum value is 1. 17 units. The two vectors are, they're in the same direction. So resultant would be also maximum. Phi would be 0. In the second case, angle between them is 60 degree. Cos 60 is 1 by 2. कितना है 229? एंड सेकंड केस में tan phi कितना आएगा? b sin theta. b is 5 sin 60 is root 3 by 2. 12 plus 5 into 1 by 2, है ना। ठीक है। sin n pi is always 0. हाँ लेकिन वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना दोनों। अच्छा, हाँ नहीं नहीं, इसमें इसकी बात कर रहा हूँ, ये 7 आ गया ना। थर्ड में इट वॉज 90। The two vectors are like this, 12 and 5. So it'll be 12 square, 5 square, and it'll be 0. And tan phi is 5 by 12. 120 था ना। Cos 120 is minus half. तो इस बार वो नेगेटिव हो जाएगा। 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2ab cos 120. Cos 120 is 1 by minus half. 109. And tan phi 5 sin 120 root 3 by 2.
and cos 120 is minus half. तो 5 root 3 by 19. और लास्ट केस में वो they'll subtract because they're in opposite direction. The two vectors are in the opposite direction, so we'll subtract. Answer is 7. So now we've seen that resultant of two vectors is always less than or equal to sum of their magnitudes. This is when theta is 0 degree, and it's always greater than difference of their magnitudes, right? Whenever there are two vectors, उनके वेक्टर सम का मैग्नीट्यूड उनके इंडिविजुअल सम से इक्वल या छोटा होगा. Like 12 plus 5, 17. 17 is the maximum. So 12, suppose somebody gives you two or three vectors like 12, 5, and 18. Is this possible? Can we have three vectors like this, 12, 5, and 18? Three sides of a triangle? No, because 12 plus 5 is less than 18, third side. And these three cannot be vector of three side also, representing three sides. ये याद कर लेना. Then next is we have learned how to add two vectors A and B. Suppose हमें subtract करना है, फिर क्या करेंगे? This is A and this is B. I want to find A minus B. A vector minus B vector. ये find करना है. So A vector minus B vector would be same as adding A with minus B. A को minus B से add कर लो या तो. B अगर ये है तो minus B क्या होगा? Just change the direction. अब हम क्या करेंगे? A और minus B को add कर लेते हैं using which law? Parallelogram law. वेक्टर A ड्रॉ किया और वेक्टर माइनस बी को कोइनिशियल बना दिया. And then complete the parallelogram. So this will be A plus minus B. ये एंगल कितना हो जाएगा? A और B के बीच का एंगल था थीटा. This angle was theta, so this would be 180 minus theta. So if you're finding A difference B, A minus B का mod angle is cos 180 minus theta, which is minus cos theta. So whenever you're finding magnitude of A minus B vector, A vector minus B vector, remember there will be negative sign. अगर A और B के बीच का एंगल थीटा है तो A और माइनस B के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा होगा. वेक्टर सब्ट्रैक्शन में हम क्या कर रहे हैं? उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड कर रहे हैं. हम्म याद आ गया कुछ बचपन का? अच्छा, ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी हो जाएगा वो. तो किसी पैरेललोग्राम में दो जो डायगोनल है, एक डायगोनल ए प्लस बी रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा ए माइनस बी रिप्रेजेंट करेगा. जैसे कि इस पैरेललोग्राम में दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए प्लस बी एंड दिस विल बी ए माइनस बी और बी माइनस ए, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन. वो हम ट्रायंगल लॉ से देख सकते हैं. सो वन डायगोनल वुड बी ए प्लस बी, अदर वुड बी ए माइनस बी और बी माइनस ए. एक क्वेश्चन लिखो. Resultant of two vectors resultant of two vectors is perpendicular to resultant of two vectors is perpendicular to first vector and half and is half in magnitude
and is half in magnitude of the second vector. Okay? मैंने लिखवाया है resultant of two vectors is perpendicular to the first vector and is half in magnitude of the second vector. ठीक है? Find angle between two vectors. Find angle between two vectors. कर लो. क्या हुआ? You can use the diagram, उससे भी आ सकता है, या फॉर्मूला यूज कर उससे भी आ सकता है. दो फॉर्मूले लगेंगे. रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट वेक्टर, तो तुम्हें 5 दे रखा है. 5 को तुम 90 डाल दो, उससे आ जाएगा. प्रूव नहीं करना, दिया हुआ है मैंने. 590 डिग्री है ना, तो उसको नीचे ले लो. 1/∞ हो जाएगा, वो जीरो बन जाएगा. सी सी यू कैन यूज डायग्राम. मैं इसको पहले डायग्राम से करके बताता हूँ. सपोज इज अ वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस. ये रिजल्टेंट आ गया. देन आई कंप्लीट द पैरेललोग्राम. दिस इज द सिचुएशन एंड इट इज हाफ इन मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड वेक्टर. इसको अल्फा ले लेते हैं फॉर टाइम बिंग. ठीक है? तो मैं क्या गिवन है, एक तो ये 90 गिवन है, दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल्स टू, हो गया. तो यू कैन फाइंड कॉस अल्फा. इस ट्राइंगल से कॉस अल्फा निकाल लो. कॉस अल्फा कितना आ रहा है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज सी बाय बी विच इज 1/2. तो अल्फा कितना आ गया? 60. So this angle is 60, this angle is 90, so angle between them is, बस बड़े आराम से ऐसा होता है बड़े बड़े शहरों में. 150 एंड यू कैन यूज फॉर्मूला एंड गेट द आंसर. उससे भी आएगा. कैसे? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. थीटा फाइंड करना है.
Also, we've been given that phi is 90, है ना? phi 90 बहुत कुछ होगा उससे. तो tan phi का फॉर्मूला क्या था? b sin theta over a plus b cos theta. So a plus b cos theta is equal to b sin theta by tan 90. मैंने इसको नीचे कर लिया, ले लिया इसको. tan 90 इन्फिनिटी होता तो ये जीरो हो गया. तो यहाँ से आ गया a plus b cos theta is equal to जीरो. तो यहाँ से वी कैन रिप्लेस a is minus b cos theta. a को रिप्लेस कर दो, c को रिप्लेस कर दो, थीटा आ जाएगा. थीटा ही चाहिए था. करके देखो. ए बी एंड सी. ठीक है. अब बी इसका थ्रू आउट कट जाएगा, कॉस्टा की वैल्यू रहेगी. स्क्वायर करो ना इसका. सी स्क्वायर तो है. Using the formula also will give the same result. C is b by 2, so b square by 4. A is minus b cos theta, so b square cos square theta. B square 2ab. A is minus b cos theta, so 2b cos square theta. So 1 by 4 equal to cos square theta. नहीं, b स्क्वायर वो 2 है ना, माइनस cos स्क्वायर थीटा आएगा. तो cos स्क्वायर थीटा इज 1 minus 1 by 4. cos थीटा इज प्लस माइनस √3/2. तो प्लस लोगे तो थीटा 60 आएगा, माइनस लोगे तो 150 आएगा. ये पॉसिबल नहीं है. ये क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज अगर रिजल्टेंट एक वेक्टर के 90 डिग्री है तो थीटा तो 90 से बड़े होना चाहिए ना. 60 डिग्री इज नॉट पॉसिबल. तो 150 इज आंसर. माइनस √3/2. कॉस ऑफ 150 इज माइनस √3/2. ठीक है. दोनों मेथड से आ गया. सपोज दिस ए रेगुलर हेक्सागन. हेक्सागन में इंटीरियर एंगल कितना होता है? 108. 120. You see, sum of interior angle is always n minus 2 into 180. And interior angle is always, if it's a regular polygon, पेंटागन का वन होता है 72. 108 होता है, हाँ, इंटीरियर. इससे आ जाएगा. एन को 6 डालो, 120 आएगा. सही नहीं बना ना? तो सपोज ये रेगुलर हेक्सागन है. ए बी सी डी ई एफ. इसके दो वेक्टर तो मैं दे रखे हैं. दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी. My question to you is that you find all these vectors in terms of vector A and B. AC vector निकालो, FD निकालो, FC find करो, EC find करो. All these vectors in terms of A and B only.
कर लो। फिर रेगुलर हेक्सागन, इसमें दो वेक्टर दे रखे हैं तुम्हें। ए बी वेक्टर ए दिया हुआ है, एंड बी सी वेक्टर इज बी, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड दीज वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। ट्रायंगल लो और वो सब कुछ यूज करना पड़ेगा तुम्हें, पैरेललोग्राम लो। लो आराम से। रेगुलर हेक्सागन 120 होता है, जितने भी ट्रायंगल इसमें बनते हैं वो सारे इक्विलेटरल होते हैं। हम्म। वो जो वेक्टर मैंने दिए वो निकालने हैं, वो सारे आंसर ए और बी के टर्म में निकालने हैं। हम्म। हम्म। नहीं, वेक्टर निकालने की जरूरत नहीं, ये तो मैग्नीट्यूड के लिए होता है। ये तुम्हारा आ गया ए प्लस बी, ट्रायंगल लॉ से। ये इसके पैरेलल है तो ये बी हो गया, तो ये ए प्लस बी हो गया। ऐसे करते जाओ, ट्रायंगल लगाते जाओ, जिससे, हाँ, जिससे ये इसके पैरेलल हो जाएगा, तो ई डी वुड बी सेम एज ए बी। ये वैल्यूज थोड़ी निकालनी है, वेक्टर फॉर्म में निकाल लो। वेक्टर पूछे हैं मैंने सबके, मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है। ये जैसे ए सी निकाला, ए सी हो जाएगा ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये कौन सा है, एफ डी? एफ डी के लिए तुम क्या करोगे? हाँ, राइट राइट राइट, ए प्लस बी हो जाएगा। ए प्लस बी हो गया, इसके पैरेलल तो है ये। ए सी तुम्हारा ए प्लस बी, तो वो भी ए प्लस बी हो गया। सो ए सी, इसी, इससे पैरेललोग्राम, सो दिस वेक्टर ए ओ वेक्टर वुड बी सेम एज बी। अगर बाई चांस मैंने ए डी भी पूछा होता, तो ये ए ए ओ वेक्टर इज बी वेक्टर ओनली, दिस इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, दिस वुड बी बी ओनली, सो ए डी वुड बी बी प्लस बी टू बी वेक्टर। This is B, this is A. I apply parallelogram law. This would be A plus B. AC vector would be A plus B. FD कैसे फाइंड करोगे? If you join this is a parallelogram. AC vector and FD vector would be the same. कौन सा? FC? FC would be 2A. FC would be, देखो ये AB है ना, this is a parallelogram. FO would be A, this is a parallelogram. OC would be also A. FC would be, FC would be 2A.
जोर से पूछा करो, 2 + 2 कितना नहीं होता। वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, एनी पॉलीगन, इरेगुलर रेगुलर। लेकिन जो सेकंड फॉर्मूला लिखा है वो है रेगुलर पॉलीगन में ईच एंगल। ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन एनी पॉलीगन। दूसरा फॉर्मूला है इंटीरियर एंगल इन ईच ईच एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन। ईसी कैसे फाइंड करोगे? ईसी, ईडी वुड बी ए, राइट? देन डीसी क्या होगा? डीसी भी कैसे हो जाएगा? कैसी बातें कर रही हो? लुक एट दिस पैरेललोग्राम। In this parallelogram, DC is the same as OB or not? Agree? DC is the same as OB. What is OB? How would you find OB? OB, you can use this triangle. AO vector plus OB vector is equal to AB vector, right? What is AO vector? AO vector is B. OB vector we need to find. AB vector is A. So OB vector is A minus B. So DC is also A minus B. अब let's use triangle law here. ED vector plus DC vector would be EC vector. ED is A, DC is A minus B. EC would be 2A minus B. EC is 2A minus B. FB कैसे निकालोगे? FB would be the same ना? FB, ये parallelogram है. EC and FB are equal. EB, you can find this. We already know OB. We know OB. OB कितना था? And EO will also be A minus B. OB is A minus B. EO will be also A minus B. So EB would be twice. सारे हो गए. कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो. अर्शिया, चिराग. No, sir. बरोबर समझ में आ रहा है? नहीं, इसमें मैग्नीट्यूड नहीं निकालना था, सिर्फ वेक्टर के फॉर्म में था. देन प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. पहले ट्रिपल प्रोडक्ट भी था कोर्स में, वो सारा हट गया. We can multiply vectors in such a way that their product is a scalar quantity. तो उसको हम बोलते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट. If you multiply two vectors such that their product is a scalar quantity, it is called dot product or scalar product. And if we multiply two vectors in such a way that their product is a vector quantity, it is called vector or cross product. तो क्रॉस प्रोडक्ट तुम लोगों ने काफी किया है 12th फिजिक्स में, कर ही रहो. टॉक ऑन डायपोल, इलेक्ट्रिक, सारा सब भूल गए. मैगी डायपोल, एम बी साइन थीटा.
That's all cross product. Area with triangle also using that only. Dot product भी use किया है. Potential energy of electric dipole minus P dot E. So suppose we have two vectors A and B, and the angle between them is theta. So dot product is represented by placing a dot in between, and it is equal to product of A magnitude B magnitude cos theta. So this is the formula for dot product. A dot B is AB cos theta. Examples of dot product, work done, you've done, is dot product of force and displacement. Electric mechanical power is dot product of force and velocity. Potential energy of dipole is magnetic dipole. So all these are example of dot product. If you interchange their places, dot product remain unchanged. A dot B is always B dot A. Dot product of two vectors is commutative. Dot product of two vectors is commutative. और दो की जगह अगर तीन वेक्टर होंगे तो सो क्या होना चाहिए? इट इज मीनिंगलेस. यस, आई टेल यू व्हाई. ए डॉट बी वेक्टर होगा स्केलर होगा? स्केलर. ये कोई नंबर है सपोज एक्स, तो किसी रियल नंबर का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के साथ कैसे निकाल सकते हो? दैट इज व्हाई इट इज मीनिंगलेस. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है बट वो ऐसे लिखा जाता है ए डॉट बी क्रॉस सी. दिस इज कॉल्ड एस टी पी. स्केलर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बॉक्स प्रोडक्ट. अब इसमें क्या है, बी क्रॉस सी होगा वेक्टर, तो वेक्टर का डॉट दूसरे वेक्टर से स्केलर बन जाएगा. इट गिव्स यू द वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स. थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, कोर्स में से हट चुका है सारा. सो दिस इज मीनिंगलेस. इफ वी फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इट सेल्फ, तो क्या आएगा? So A dot A will be always mod A square. काफी काम आएगा ये, किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ. जैसे कि I डॉट आई, J डॉट जे, K डॉट के, तीनों कितने होंगे? वन, बिकॉज यूनिट वेक्टर का मॉड इज वन. एक क्वेश्चन कर लेते हैं. इफ मॉड A प्लस B is equal to 1, where A, B are unit vectors, find angle between वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. करो. ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, और मॉड ए प्लस बी वन दे रखा है. ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स.
हिंट बोर्ड पे लिखा हुआ है सामने ही। हम्म। ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर होता है, वो यूज करना है तुम्हें। हाँ, तो बेसिकली जब तुम स्क्वायर करोगी तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी हो जाएगा ना। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर लो, फिर ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी हो जाएगा लेफ्ट में। स्क्वायर करो दोनों साइड को। हम्म। अब वो हिंट यूज कर लो। ए डॉट ए होता है मॉड ए का स्क्वायर। इसको, अरे डॉट, तुम मॉड में मॉड डॉट कैसे लगा दोगे, तो हटाओ ना, नॉर्मल ब्रैकेट लगाओ। हम्म। अब इसको ओपन कर दो। स्कूल में तो हो चुका होगा ही, फिर आने वाला है ये तो एग्जाम में। सेम टू सेम। देखो दोनों साइड को स्क्वायर किया, हमें मॉडुलस साइन हटाना है ना समहाउ। मॉडुलस साइन ऐसे हटता है। सो अब सिंस ए डॉट ए इज मॉड ए स्क्वायर, तो मॉड ए प्लस बी स्क्वायर वुड बी वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए प्लस बी, विच इज 1। Mod is gone. Now open the brackets. So when you open this, it will be A dot A plus A dot B plus B dot A plus B dot B equal to 1. A dot A would be again A dot A would be A square. B dot A is A dot B, and this is B square. But A and B are unit vectors. तो अगर A B unit vectors है तो क्या होगा? Right. This would be A B cos theta. अगेन मॉड इसका 1 हो गया, 2 into 1 into 1 cos थीटा इज इक्वल टू -1, cos थीटा इज इक्वल टू -12। cos थीटा -12 कब होता है? 120 डिग्री। सो एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री। सर इसमें कैन वी यूज द रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला? हाँ, यू उससे कैन। फिर सेम ही आंसर आ रहा है? हाँ, यस यस। नाउ व्हाट इफ थीटा इज 0, थीटा इज 90? If theta is 90, then A dot B will be always 0. जब भी angle between two vectors is 90 degree, their dot product would be 0. But vice versa may not be true. अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट 0 होगा, no, angle could be 90, but it it could be possible that one of the vector is also 0. So it's not necessary that angle would be 90 only. So A dot B would be 0. What about I dot J, J dot K dot I will be always 0. I dot J, J dot K dot I would be always 0. Now, if you've been given vectors in terms of component, like A vector is A1I, B1J plus C1K. Vector B is A2I plus B2J plus C2K. Then what will be the dot product? So when you open this, there'll be 9 terms, right? Like A1, A2, I dot I, which is 1,
A1, B2, I dot J, which will be 0. So out of 9 terms, 3 terms will remain, बाकी 0 हो जाएंगे. B1, B2, J dot J रहेगा और K dot K. This will be 1, rest would be 0. So A dot B is always A1, A2, B1, B2, C1, C2. So this is when you've been given two vectors in terms of their components. A dot B would be this. What about angle between two vectors? Cos theta will be A dot B divided by mod A mod B. और इसको हम कंपोनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. A डॉट बी कितना हो जाएगा? A1 A2, B1 B2, C1 C2 डिवाइड बाय mod A is A1 square, B1 square, C1 square, A2 square, B2 square plus C2 square. So you can find angle between two vectors using this. ये सारा 3D में भी यूज होने वाला है. क्या हुआ? गर्मी लग रही है? एक क्वेश्चन कर लो. If A is 2i minus 3j plus 4k, vector B is 4i plus 2k minus j. Find angle between them. अस्मी को गरिमा बताएगी. हम्म. जैसे तुम लोग हो जाते हो. गर्म पानी से नहा दे, बोलती है मेरे को फीवर हो गया. ऐसे मत बोलो. Angle between two vectors. हम्म. ये क्या किया तुमने? हम्म. तो ये तो जे तो इससे होगा. ये गलत है. आई विद आई, जे विद जे, के विद के. ये सही किया तुमने. मैंने चेंज कर दिया था. मैंने नहीं नहीं, मैंने इंटरचेंज किया जानबूझ के. काफी लोगों ने गलती की होंगी. इसने भी कर दिया. Mod A would be 4 plus 9 plus 16. Mod B would be 16 plus 4 plus 1. न्यूमरेटर क्या आ रहा है अभी का? -2. हम्म. I got -2. -2 न्यूमरेटर. अभी का तुम्हारा क्या आ रहा है? मेरा भी -2 है न्यूमरेटर में. और मेरा. चली गई क्या डिनर पे? नहीं सर, आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ी की है फिर. क्या गड़बड़ की है? आई डोंट नो, मेरा पॉजिटिव आ रहा था बट आई तुमने थिंक ही सही किया है. तुमने ही सही किया है.
मैंने क्या किया, जानबूझ के ना इनका ऑर्डर चेंज किया था, मुझे मालूम था तो लोग ध्यान तो देते नहीं हो, मोबाइल लगा के चल के रहते रोड पे। पर चलते चलते उसमें गिर चलते चलते मैन होल में गिर गए। वही यहाँ हुआ है। आई विद आई 8 आएगा, जे विद जे करना है, +3 आएगा, और के ये आएगा। तुमने सही किया था। आने ने भी सही किया था, सबने सही किया था। सो दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हम्म तो उसको ऐसे छोड़ दो, वो ऑप्शन देख के पता लग जाए कौन सा सही है। 19 है ना, 29 एंड 20, ये था। तो ध्यान देना है। 3D में ये A1 B1 C1 बन जाते हैं DRs, डायरेक्शन रेशियोज। तो दिस इज फॉर्मूला बिटवीन, और अगर थीटा 0 डिग्री होगा, वेक्टर्स आर पैरेलल, रिमेंबर दैट A1/A2 याद कर लो, काम आएगा, इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके जो कोएफिशिएंट है IJ के, दे विल बी इन सेम प्रोपोर्शन। इफ थीटा इज 0, देन A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, एंड थीटा अगर 90 होगा, देन A.B would be 0, that is A1/A2 plus B1/B2 plus C1/C2 इक्वल टू 0। ये दो रिजल्ट याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू, एंडिंग द क्लास, सी यू नेक्स्ट टाइम। Thank you so much, sir. बाय। हम्म क्यों?